Hello, students. I'm back again with my new lecture on the topic economic reforms. As I told you, this will be continuing further also. So this is lecture number 2. आज अपन discuss करेंगे about the liberalization policy basically. This lecture which I'm focusing is basically on the liberalization policy. Now let us start. What is liberalization? Basically, what does the meaning of liberalization word start? See, new economic reforms जो आए थे, basically जो भी new economic reforms आए थे, in that new economic reforms, it was simply LPG. LPG का full form बेटा, L is for liberalization, P is for privatization, and G is for globalization. So these all were being there. So in that case, ये जो आपकी new economic policy आई थी, that was focusing on liberalization, privatization, as well as the globalization. Now, continuing, what is the meaning of this particular liberalization? Let us understand what does the meaning of word liberalization means. Simply, liberalization का मतलब होता है बेटा, liberalization means removal of entry and growth restrictions on the private sectors. अगर आप growth restrictions remove कर लेते हो, किससे remove कर लेते हो बेटा? You are removing it from private sector, then this particular thing will help us to grow. Means जो प्राइवेट सेक्टर है उसे आपने ज्यादा चांस दी है ग्रो करने के लिए, यू आर गिविंग देम मोर चांस टू ग्रो. So if you are removing the restrictions from the private sector, then it is known as for liberalization. Secondly, it was to unlock the economic potential of the country. What was done? See, आपकी country expand हो रही है, our country is expanding, but to expand we need the private sector also to work. So to unlock the potential of the particular, you are focusing on the economic potential. और उसके लिए बेटा we need what? We need investment, we need particularly other things to expand, and this was encouraging what? This was being encouraged, and we need encouragement from the private sector. प्राइवेट सेक्टर को encourage करने के लिए उन्हें आपको थोड़े राइट्स तो देने ही पड़ेंगे to enter into the market. As well as the multinational corporations, they will also invest in your market only when they are being provided liberalized. So see beta, MNCs will also corporate, MNCs will also invest only when liberalization was there in the country. जब तक आप liberalization नहीं दोगे for the private sectors and the MNCs, you will not be able to grow your economy. तो अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए I have to allow MNCs, I have to allow the private sector to invest, then only we will be focusing. Otherwise, आप liberalization की simple definition अगर आपको बोला जाए what is the meaning of liberalization, the meaning of liberalization states that when you are removing the entry and growth restriction on whom? When I'm removing the entry and growth restriction from the private sector, in that case that will be liberalization. Now moving on to the next slide, let us see. The only thing is to invest and expand. As you can see, private sector and MNCs are going to invest only in that country there where they will be given certain freedom. They will not be restricted to get expansion. So that was to be done under liberalization, and that was done by the particularly government at that time. So बेटा liberalizations के जो economic reforms हैं उनको हम इस particularly 4 sectors में divide कर सकते हैं. First is financial sector reforms. Okay, in this finance से related आपके पास reforms आएंगे. Foreign exchange reforms are yet another reforms in which forex reforms are being there, means government ने forex के लिए क्या करा था. Then is industrial sector reform के industrial revolution लाने में, industries में particularly uplift लाने के लिए what was the effect of the government and what effect were being done towards the taxation reforms. कि government ने tax reforms लाने के लिए कौन कौन सी particularly steps लिए थे. Now we will be focusing on them one by one. Okay, let us see one more, that is trade and investment policy reforms. That is also, now see here I have created a short form, it is FIT. Okay, F is for financial sector reforms. Again, I is for this particularly, it is your F only
foreign exchange reform, double F, and here I is for industrial sector reform and TT. बेसिकली फिट की अगर अपन स्पेलिंग देखें तो इफ इज FIT. Now here double F because financial sector reforms are also there and foreign exchange reforms are also there, and here double T. तो एक T रिप्रेजेंट कर रहा है आपका टैक्स रिफॉर्म्स और एक T रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. Now let us understand these particular reforms one by one. Okay students, now see financial sector reforms में क्या क्या चीजें आई थी. What were the things which were being done under financial sector reforms? Let us see one by one. First, it included what? First, financial institution क्या include करते हैं बेटा? These include commercial bank, investment banks, stock exchange operations, foreign exchange market. So these all things were being regulated by whom? These financial sector is basically regulated by RBI. Now RBI is what beta? RBI is the central bank of the country. Still it is the central bank of India. So RBI ये सबको रेगुलेट करता था. अब इसके रिगार्डिंग नॉर्म्स ही बने हुए थे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. बट व्हाट नॉर्म्स आरबीआई क्रिएटेड, लेट अस सी. नाउ फर्स्ट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म व्हिच आरबीआई गिवन वाज कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आ रही हैं और वो भी बैंक्स में आ रही हैं तो उन्होंने लिमिट क्या कर दी, वहां से रेस करके 51% पे उसको लेकर आए. First, particularly. Second is autonomy to bank to set up new branches. मतलब आप new branches set up कर सकते हो अपने accordingly. You can set up the new branches as per your own convenience. आपको सिर्फ RBI को intimate करना पड़ेगा. Means you can expand your branches as much as can possible. Next is particularly role of RBI reduced from regulator to facilitator. नाउ सी आरबीआई ने अपना रोल क्या कर दिया बेटा, पहले रेगुलेट करता था मार्केट को, अब वो क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं. एंड देन लास्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया. जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत सारे आए थे, वन ऑफ देम HDFC, ICICI. नाउ दे आर द वेरी गुड मार्केट प्लेयर्स इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. सो इन दैट केस यहाँ पे आपको ये फोकस करना है, दीज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स वर बीन इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लिबरलाइजेशन. तो लिबरलाइजेशन के अंदर ये सारे रिफॉर्म्स एक एक करके अपने विल बी सीइंग दैट. माय होल लेक्चर ऑफ टुडे इज फोकसिंग ऑन द लिबरलाइजेशन पॉलिसी. लेट अस सी द अदर थिंग. Shall so let us see the next slide. In this particular slide, we will be focusing on first that was foreign investment banks की जो लिमिट थी बेटा. पहले foreign investment banks की लिमिट बहुत कम थी, उन्हें इन्वेस्टमेंट करने का इतनी अमाउंट नहीं दी थी. Now foreign investment banks were allowed for 51% investment in that. ओके आरबीआई ने पहले ये लिमिट बहुत कम रखी हुई थी. नाउ फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर अपनी बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स वर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट. और अगर वो बैंक सेटअप करते हैं तो उसमें भी उन्होंने 51% पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट अलाउड था. सेकेंड, ऑटोनॉमी क्या थी बेटा यहाँ पे कि अगर बैंक चाहे तो अपनी न्यू ब्रांचेस सेटअप कर ले. दे हैव द फ्रीडम ऑफ सेटअप आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन विदाउट एनी अप्रूवल. पहले तो हर बार अप्रूवल लेनी है. आरबीआई ने क्या कर दिया यहाँ पे कि भैया कुछ सर्टेन कंडीशन अगर आपने फॉलो कर दी तो आप बिना अप्रूवल के लिए क्या करोगे, विदाउट बिना अप्रूवल ऑफ आरबीआई you will be able to set up that particular condition. Next is focusing on R, that is role of RBI. सेंट्रल बैंक रिड्यूस्ड द रोल ऑफ आरबीआई. मतलब जो आपका सेंट्रल बैंक आरबीआई खुद था, उन्होंने क्या कर दिया, अपना रोल रिड्यूस करके रेगुलेटर से किसमें कर दिया, facilitator. As a result, what happened, financial sectors was allowed to take decisions only on not on many matters without any consultation with the RBI. ओके सो यहाँ पे आप देखो कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहले तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट 51% पे लेके आ गए. सेकंड, ऑटोनॉमी टू बैंक की न्यू ब्रांच में सेटअप करने के लिए बोल दिया. थर्ड, रोल ऑफ आरबीआई बदल चुका. आरबीआई के बाद यहाँ पे लास्ट वन दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. अब इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आना शुरू हो गए थे, जैसे HDFC, ICICI बैंक. आई टोल्ड यू उनकी कॉम्पिटिटिवनेस और शुरू हो गई. इन दैट केस दे स्टार्टेड and they were offering their loans at a very low interest rate and they were offering very much better services. Now moving on to the next
पर्टिकुलर स्लाइड इन दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। ये जो था बेटा आपका बेसिकली आरबीआई के रोल पे था। नाउ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में अपन ने क्या क्या चीजें देखी बेटा। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म जब आए थे तो इट केम इन 1991 ओनली। ओके, अब उसके लिए पहले फर्स्ट प्रॉब्लम वाज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, कि भैया आपका जो बीओपी जो बहुत डाउन चल रहा है उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले ये फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे। अब इसमें आरबीआई ने क्या करा, सबसे पहले आरबीआई ने अपनी करेंसी को डीवैल्यूएशन करा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीवैल्यूएशन बेटा, ये मैंने बीओपी में समझाया है, बीओपी वाली पर्टिकुलर चैप्टर में। डीवैल्यूएशन में जानबूझ के हम इंडियन रुपीस को डाउन करते हैं ताकि अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, और अगर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, वी विल बी एबल टू इंक्रीज आवर फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज करना था तो इन दैट केस दे वर टू डीवैल्यू द करेंसी। ओके, मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट क्या करना है अपने को, सी देयर इन आरबीआई इंटरफेयर इन द मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। उन्होंने क्या कर दिया, अपनी जो करेंसी है मींस इंडियन करेंसी, दे डीवैल्यूड इंडियन करेंसी, व्हाई, बिकॉज उनको एक्सपोर्ट्स बढ़ाने थे। इफ ऑर्डर टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स डिवैल्यूएशन करना कंपलसरी हो जाता है बेटा। मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट अलाउड रुपी टू फ्रीली फ्लोट एंड द मार्केट रेट अपने आप डिसाइड करने के लिए। मार्केट फोर्सेस कौन कौन सी थे एट दैट मोमेंट, डिमांड एंड सप्लाई कैन फ्री डिटरमाइन द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीस पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। मार्केट वैल्यू जो भी आएगी, अब उसमें अगर आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, इसी अभी भी आरबीआई ये करता है, अभी भी अगर उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं होती है तो आरबीआई डीवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन करता है। नाउ डीवैल्यूएशन एज आई टोल्ड यू इट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय गवर्नमेंट, इंटेंशनली करती है गवर्नमेंट। क्यों करती है इंटेंशनली, क्योंकि उससे अपने एक्सपोर्ट्स क्या करने हैं, इंक्रीज करने हैं, सो दैट अभी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस था उसे खत्म कर लें। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट ये हुआ, इट लेड टू इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। व्हाट हैपेंड, इससे क्या होगा, उसका इनफ्लो क्या हो गया, बढ़ गया। इनफ्लो एकदम से बढ़ गया, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो आना शुरू हो गया। अल्टीमेटली इट इंक्रीज्ड व्हाट, इट इंक्रीज्ड द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस आए थे, सी in order to make necessary reforms in industrial sector, government introduce a new industrial policy। उन्होंने क्या करा, एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर्टिकुलरली इंट्रोड्यूस करी फ्रॉम जुलाई 24 1991, डेट याद रखना। अब इसके अंदर कौन कौन से रिफॉर्म्स आएंगे बेटा। फर्स्ट रिफॉर्म इज डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आइटम्स। okay, let us see this de-reservation। Now what was this particular industrial sector reform बेटा, फर्स्ट उन्होंने क्या करा कि उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी रखी हुई थी उसे हटा दिया, कि भैया ये जो प्रोडक्ट्स हैं आप रिजर्व रखोगे, अब उन्होंने हटा दिया। सेकेंड क्या बोला कि भैया पब्लिक सेक्टर का जो रोल है अब उसे कम करो। फर्स्ट कि आपका स्मॉल स्केल की जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी वो हट गई। सेकेंड उन्होंने क्या कर दिया, पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो कम करना शुरू करा। थर्ड है कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अबॉलिशन, जो लाइसेंस राज बना के रखा था, इसको बहुत अच्छे से बोला जाता है लाइसेंस राज, जो लाइसेंस राज बना के चल रहे थे उसको हटाया, कि भैया नहीं अब लाइसेंस लेने के लिए इतनी रिकमेंड करने की नहीं है। और नेक्स्ट इज प्राइस रेगुलेशंस, उन्होंने क्या कर दिए, प्राइस रेगुलेशंस चेंज कर लिए। ओके, नाउ फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स अगेन। सबसे पहला जो था बेटा डी रिजर्वेशन ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो मेनी गुड्स व्हिच वर बीन रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर नाउ बीन डी रिजर्व, उनसे उनको हटा दिया। सेकेंड क्या बोला, उनका रोल जो पब्लिक सेक्टर का है उनका पूरा खत्म कर दिया। क्या बोला कि भैया आप जो इंडस्ट्रीज, जहाँ पहले 17 इंडस्ट्रीज पे आप इन्वेस्ट कर रहे थे, अब सिर्फ 3 इंडस्ट्री आपके लिए रिजर्व रहेगी। फर्स्ट इज डिफेंस, सेकेंड इज एटॉमिक एनर्जी एंड थर्ड इज रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। बस इन सब के अलावा आप कहीं पे अपना पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट या उसके बाकी सेक्टर्स आप प्राइवेटाइजेशन को दे सकते हो। अभी अपन आगे पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन क्या है। सो मेनी अदर सेक्टर्स वो भी प्राइवेटाइज, बस ये 3 सेक्टर्स अभी भी बेटा गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज नहीं करे हैं, डिफेंस, एटॉमिक एंड रेलवे।
ओके। फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अबॉलिशिंग का मतलब क्या है बेटा? नो लाइसेंस वर नाउ नीडेड टू सेट अप अ न्यू यूनिट, एक्सपांड और डाइवर्सिफाई। एक सिंपल एग्जांपल समझो। आज अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहा हूँ, सपोज टेक फॉर द एग्जांपल रिलायंस। अब रिलायंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर चुका है, अब उसको एक और पर्टिकुलरली अपना इंटरप्राइज सेटअप करना है, एक और ऑफिस लेना है या अपना एक्सपांशन पे जाना है। तो पहले क्या होता था, भैया एक्सपांशन कर रहे हैं, अलग ही लाइसेंस लेने दो। अब सेम नेम है, सेम पर्सन है, सेम मैनेजमेंट है, जो लाइसेंस पहले ले चुकी है वो वापस लाइसेंस लेने जाए। सो इन दिस केस दिस वाज नोन एज अ लाइसेंस राज, जो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पूरी तरह से हटा दिया। उन्होंने क्या बोला कि भैया जो लाइसेंस राज है अब जो होगा वो हटेगा। हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल लाइसेंस को पूरा अबॉलिश करेंगे। अगर सेम यूनिट है, अगर वो एक्सपांड करना चाहती है, डाइवर्सिफाई करना चाहती है, तो उसको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन दी रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के यहाँ पे बोला कि भैया आपकी जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनका रोल आप क्या करो, कम करो, और प्राइवेट सेक्टर को हो सके जितना हो इंप्रोवाइज करो। नाउ कमिंग टू बेटा टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स में क्या क्या चेंजेस हैं, लेट अस सी। टैक्स रिफॉर्म्स में इट रिफर्स टू गवर्नमेंट टैक्सेशन, और इसको बेसिकली बोला था बेटा फिजिकल पॉलिसी। अगर आपको याद हो, मैंने आपको गवर्नमेंट बजट में ये बताया है कि व्हाट इज फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट विच इज कलेक्टिवली नोन एज फिजिकल पॉलिसी। अब इसके अंदर दो टाइप के टैक्सेस जो अपन ने गवर्नमेंट बजट में भी डिस्कस करे थे बेटा। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स है वो सीधा सीधा किस पे अफेक्ट होता है, इनकम ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ द कॉर्पोरेट। सो इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट बेटा, दे आर द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। मींस अगर कंपनी पे लगा रहा हूं तो डायरेक्ट टैक्स, एक पर्सन पे लगा रहा हूं तो इनकम टैक्स। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो गया, जो बेटा लगते हैं ऑन दी टैक्सेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे इनकम और प्रॉपर्टी पे नहीं, यहाँ पे जो आपकी लगेंगे दे आर पर्टिकुलरली हैविंग द इफेक्ट ऑन गुड्स एंड सर्विस, जैसे जीएसटी। ओके, जीएसटी देन वेट जो पहले था, फिर एक्साइज ड्यूटी। सो ये सारे के सारे क्या थे बेटा, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट की टैक्स में क्या रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेकर है। फर्स्ट रिफॉर्म गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया आप प्रोसेस सिंप्लीफाई करो ताकि ज्यादा टैक्स पेयर्स आए, ज्यादा चीजें टैक्स कलेक्शन हो। सेकेंड, इनडायरेक्ट टैक्सेस रिफॉर्म, ह्यूज रिफॉर्म्स हैव बीन मेड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ताकि हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ सके। अपन टैक्स कलेक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो अपने को कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज। और उन्होंने क्या करा, टैक्स रेट्स थोड़े कम करे, दैट इज रिडक्शन ऑफ टैक्सेस, ताकि what will happen, it will particularly motivate other persons to come under tax regime, and जो उनका जो कर चोरी जैसे बोलते हैं टैक्स की तो चोरी कर रहे हैं वो थोड़ी कम हो जाए। सो उनका बेसिकली यहाँ पे ये चीज था, दैट वाज फर्स्ट इज प्रोसेस को सिंप्लीफाई करो, ये आपका फोकस है। सेकंड क्या बोला उन्होंने, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे उनको रिफॉर्म्स लेकर आओ, दैट शुड बी मोर इनडायरेक्ट टैक्स कम शुड कम। एंड थर्ड जो उनका पर्टिकुलर केस था कि भैया टैक्स के रेट कम करो। जैसे ही तुम टैक्स के रेट कम करोगे, इम्पैक्ट क्या होगा, आपके पास टैक्स पेयर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। अब आ जाते हैं बेटा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, दिस वुड बी लास्ट इफ आई एम गोइंग फॉर दैट। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स में क्या बोला, लिबरलाइजेशन ऑन ट्रेड वर बीइंग गिवन। अब वो इनिशिएट कैसे करा, इट विल इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, और ये इससे क्या होगा, फॉरेनर्स भी आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। और इसका एक और फायदा था कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो भी कंपटीशन झेले ना। आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स अभी क्या थे, सिक्योर्ड थे, क्योंकि इंडिया एलपीजी फॉलो नहीं कर रहा है। अब जैसे इंडिया एलपीजी फॉलो करना स्टार्ट करेगा, डोमेस्टिक वालों को भी तो फॉरेन कंपटीशन झेलना पड़ेगा, डोमेस्टिक वाले भी तो फॉरेन कंपटीशन झेलेंगे। सो टू प्रमोट फॉरेन कंपटीशन एंड टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, वहां पे क्या करा उन्होंने, अलाउ करा फॉरेनर्स को टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। सो ये लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन में ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म से फोकस हुआ। व्हाट वाज दिस, फर्स्ट इन्होंने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शंस जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे थे वो हटा दिए। Many goods produced by small scale industries were de-reserved, वो पूरा कर देख लिया। एक्सपोर्ट ड्यूटीज का रिमूवल हटा दिया ताकि एक्सपोर्ट बढ़ जाए, और अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली बैलेंस ऑफ पेमेंट में अच्छी पोजीशन होगी। सो एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर रिमूव टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स, हमारे गुड्स की भी मार्केट में डेवलपमेंट हो, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी को क्या कर दिया, कम।
Next is import duty reduction. Import duties were reduced to improve the position of domestic goods in foreign market again. And next is relaxation in import licensing system. उन्होंने क्या बोला कि भैया आपका जो import license है उसको आप क्या करेंगे, हम relax कर देंगे और easily आप import license ले लो ताकि आप better prices पे अच्छी चीजें लेकर आओ और जो domestic producers है उनको भी foreign competition पर्टिकुलरली पता चले दैट व्हाट टाइप ऑफ सी। आज अगर अपन एडिडास पर्टिकुलर परचेज कर पा रहे हैं, नाइकी परचेज कर पा रहे हैं, वीवो फोन परचेज कर पा रहे हैं, एप्पल परचेज कर पा रहे हैं, सो ये सारी कंपनीज बाहर की, तो ये कंपनीज बाहर की इसलिए यहाँ पे ट्रेड कर रही है बिकॉज दी पर्टिकुलर ट्रेडर्स आर इंपोर्टिंग दोज गुड्स फ्रॉम दैट। तो जैसे ही वो इंपोर्ट करेंगे इन दैट पर्टिकुलर केस। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर on this particular topic. This was my lecture number 2 on Indian economics. Particularly, this was the third chapter which we are seeing, that is reforms from 1991. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, do subscribe my channel, do hit the like button, and do follow me on Instagram, Facebook, and I have also created my Telegram channel, which I'm uploading my all videos on my Telegram channel as well. So you can get the link of the Telegram channel in the description given below, and do subscribe my channel for further updates. Thank you students for listening today's video.